guys, today we'll be discussing about guesstimates. I hope you know what guesstimates are. Basically, guesstimates are estimates without complete data. Generally, हम estimate जब भी लगाते हैं किसी चीज का, we have a lot of data, about that particular thing. For example, whenever you're working on something, even in your college, whenever you're preparing a report, जब भी तुम अपना कुछ research करते हो, you get a lot of data, and on the basis of that, do all your calculations. But when you're doing guesstimates, when you're making guesstimates, you don't have a lot of data. तुम्हें कुछ एक बॉल पार्क नंबर एस्टिमेट करना पड़ेगा, ठीक है, रैंडम कुछ अजम्पशंस लगानी पड़ेंगी बहुत सारी, ठीक है। तो वो सब चीजें होती हैं। यू डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ डेटा टू रिलाई ऑन, बट यू हैव टू मेक अ लॉट ऑफ assumptions। कुछ डेटा होता है, कुछ नहीं होता। तो दैट इज व्हेन यू मेक guesstimates, ठीक है। And now the question is, why do recruiters test you with guesstimates? Basically, they want to analyze your analytical thinking. That means how do you critically evaluate things? How do you analyze information? How do you process information inside your mind? How do you solve problems? Because a lot of people, write this thing in their resumes that they have problem solving skills. जब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग लिख दिया तो वो उसको टेस्ट करते हैं गेस्टिमेट्स के थ्रू, लाइक हाउ डू यू सॉल्व प्रॉब्लम्स। दैट मींस दे वांट टू एंड सी दैट हाउ डू यू critically evaluate situations and things, and how do you analyze information, how do you synthesize information, how what are your problem solving skills, because a lot of people mention problem solving in their resumes. So how do you prove that you actually have those problem solving skills, ठीक है। Then how comfortable are you with numbers, because a lot of profiles like finance, consulting and all, so they require a lot of work with numbers. So they want to check that quantitative aptitude as well, that you are good with you're good with numbers. Then your decision making skills, your logical reasoning skills, your understanding of problems, and your communication skills, obviously, because how do you explain what you have thought just on your feet instantly. Okay, so this is what recruiters will be testing you. So you can note it down, because this is important. When you should be knowing that recruiters are going to test me on these things, so that whenever you are giving them any answers for a guesstimate, so that you give logical answers, and with a lot of reasoning. Okay. Now these are some of the roles that require guesstimate assessment. Like there are a lot of steps that recruiters have in their hiring process. But now when we talk about what all profiles are very common when guesstimate assessment step is there. So one of the job profile is management consulting. Other job profiles are like market research profiles, product management profiles, and many profiles in startups, because in startups you are performing a lot of roles. So they ask you for these kind of questions, so that they know that you are a problem solver and you can handle multiple cases and multiple scenarios. So whenever you are applying for a job, so they would ask you, you can expect that there would be a guesstimate question in your interview process. Then roles like investment banking, data science, and as a developer or engineer, so they can ask you these questions, because as a developer, you have to make all that framework for any project that you're creating. So you need to make a lot of guesstimates for that project as well, right? So in the profiles में बहुत common है guesstimate assessment. But apart from that, there are other roles as well. Like काफी कहीं और भी पूछ सकते हैं, like a lot of banking profiles and multiple or like B2B profiles, risk consulting profiles maybe, risk advisory maybe. You can expect these kind of guesstimate assessments. Now, I'll be guiding you throughout the process, step by step approach हम चलते हैं इस पे. So basically, whenever a guesstimate round is there, so how you're given a problem statement. अभी हम भी discuss करेंगे जो problem statements पे. I'll solve one or two guesstimates as well. But before that, I'll teach you how do you analyze the information, how do you synthesize the information, and how do you solve it. Okay, so the first thing is that whenever you get the problem statement, the first thing that you have to do is that you have to organize your thoughts. ठीक है, कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्या, इसके बेसिस पे मतलब मुझे सॉल्व करना क्या है, वहां तक आने के लिए मतलब मुझे क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, एंड यू कैन क्रिएट योर ओन पाथवे इन योर माइंड। ठीक है, ऐसा ऐसा होगा। इट्स ग्रेट इफ यू कैन हैव अ पेन एंड पेपर विद यू, एंड वहां पे फिर तुम अपने इशू स्टेटमेंट्स बना सकते हो। इशू स्टेटमेंट्स आर लाइक व्हाट आर मेजर इश्यूज आर गोइंग टू देयर, जो तुम्हें चाहिए होंगे उसके लिए। ठीक है, इशू स्टेटमेंट्स आर लाइक इफ आई गिव यू अ स्टेटमेंट कि इंडिया में कितने एटीएम्स हैं, ठीक है, तो तुम्हें देखना होगा इंडिया में पहली बात तो टीयर 1 सिटीज कितनी है, उसके बाद टीयर 2 सिटीज अगर तुम नहीं भी एज्यूम कर पा रहे, तुम एक एरिया एज्यूम कर लेते हो कि इतने इतने स्टेट्स में इतनी इतनी जगह पे एटीएम्स होंगे। तो ये इशू स्टेटमेंट्स तुम उसको रखते हो अपने अंदर। ठीक है, लॉजिक स्टेटमेंट्स बेसिकली, अब जैसे अगर मैं एटीएम वाले केस स्टडी लूँ, तो लॉजिक स्टेटमेंट्स यहाँ पे कैसे हो सकती हैं कि पूरी प्रॉब्लम्स को कुछ लॉजिकल रिलेशनशिप्स में यू कैन डिवाइड इट टू देम, राइट। तो लॉजिकल रिलेशनशिप्स लाइक
कितने लोगों के बैंक अकाउंट होंगे। अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन सी की लाइक इस एरिया में ज्यादा बैंक अकाउंट्स होंगे बिकॉज ये अर्बन एरियाज हैं, ठीक है, ये अर्बन स्टेट्स हैं, ऐसे ऐसे ये इन एरियाज में थोड़े कम होंगे, यहाँ पे थोड़ा सा लाइक प्रॉब्लम होगी। अकॉर्डिंगली यू कैन मेक दोज एस्टिमेट्स, ठीक है। Now the last step is MECE principle, which means that your assumptions are going to be mutually exclusive but collectively exhaustive. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि वट एवर अजम्पशन आई एम मेकिंग, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ अर्बन एंड रूरल, तो ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अर्बन अलग है, रूरल अलग है, और मैं दोनों को ले रहा हूँ, दैट मीन्स आई एम कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव, मतलब मैंने पूरा एरिया भी कैप्चर कर लिया। ठीक है, दो स्टेटमेंट्स मैंने इसको डिवाइड करा और उसके बाद मैंने इसको कलेक्टिव भी कर दिया, दैट मीन्स सब कुछ इंक्लूड भी हो गया बट आपस में उनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। स्ट्रक्चर द क्वेश्चन इन योर माइंड, तुम्हें सामने से क्वेश्चन आएगा एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ठीक है ऐसे मुझे करना है सॉल्व, क्योंकि एक स्टेटमेंट आ गई उसके बाद तुम्हें ब्लैंक नहीं होना है वहां पे। उस स्टेटमेंट के बाद तुम्हारे माइंड में पूरा उस स्टेटमेंट को लेके पूरी इशू स्टेटमेंट बिल्ड हो जाना चाहिए कि मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा, कौन कौन से एरियाज में क्या क्या चीजें होंगी। तो उसको मैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी रखूं कि आपस में कुछ कॉमन ना हो, बट आई हैव टू मेक श्योर कि सारा एरिया जितना भी है मैंने पूरा इसको इंक्लूड भी कर लिया, दैट मीन्स एवरीथिंग इज कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव एज वेल। ठीक है, तो पूरी वो चीजें हो जाएंगी, दैट मीन्स मेरी प्रॉब्लम अब क्या है, स्ट्रक्चर हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा, अब आई हैव टू मेक assumptions, जो हमने यहाँ पे लिखा था लॉजिक स्टेटमेंट्स और, ठीक है। अब उस पे हम क्या करेंगे, अपनी assumptions बनाते हैं, क्योंकि हर चीज में जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, व्हाट आर guesstimates? Guesstimates आर estimates विदाउट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। दैट मीन्स तुम्हारे पास सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है, सारा डेटा नहीं है, so you have to make a lot of assumptions, ठीक है। So you are going to make assumptions of all those things. For example, if I'm saying how many white cars are there in Delhi, तो तुम्हें अब exactly तो नहीं पता white cars कितनी है, but you can assume कि क्योंकि अब cabs सारी white होती हैं, ठीक है, और there are a lot of cabs, ठीक है, और उसके अलावा भी people prefer white cars because of hot climate and all. तो तुम assume कर सकते हो कि इंडिया में approximately like 40 to 45% would be white cars, ठीक है। तो ऐसे assumptions बनानी पड़ेंगी तुम्हें टू सॉल्व these kind of questions, ठीक है। तो ये सारी assumption जो तुम्हारी होंगी तुम्हारी बेसिक इंडस्ट्री नॉलेज को लेके। अब इसमें फर्क क्या है, हो सकता है प्रीत बोलेगी, अगर मैं व्हाइट कार्स का क्वेश्चन ले सकता हूँ तो हो सकता है प्रीत बोलेगी इंडिया में लाइक इन दिल्ली देयर आर 40% व्हाइट कार्स, ठीक है। राधिका बोले देयर आर 50% व्हाइट कार्स। नाउ बिकॉज इट्स अ गेस्टिमेट, तो रिक्रूटर को तुम्हारा एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहिए, उसको तुम्हारी अप्रोच जाननी है, ठीक है। तो इट वोंट मैटर इफ यू सेइंग 40% और 50%। हाँ, अगर तुम बहुत ही एक वेग सा आंसर दे दो कि लाइक 70% ऑफ व्हाइट कार्स, दैट वोंट मेक सेंस, ठीक है। या फिर तुम बोलोगे सिर्फ 5% व्हाइट कार्स हैं, दैट वोंट मेक सेंस, वो लॉजिकल नहीं है। तुम्हारी assumptions भी क्या लॉजिकल होनी चाहिए, एग्जैक्ट उनको भी नहीं चाहिए, बट योर assumptions should make sense to the recruiter. Getting my point? And make sure whatever approach you're following is very simple and very relevant as well. कुछ ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। जितनी सी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो उसको बहुत सिंपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करके उसको सॉल्व करना है, ठीक है। ओवर कॉम्प्लिकेट कुछ भी नहीं करना, ठीक है। Now we'll discuss about some calculation techniques so that we can come to a actual case study. So how do you calculate? जैसे मैंने बोला तो मैं कि 40% या 50% माना मैंने, ठीक है। मैं 45 भी बोल सकता था, मैं 47 भी बोल सकता था, 44 43 कुछ भी बोल सकता था, बट वो क्या करेगा, क्योंकि तुम्हारी कैलकुलेशंस को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कर देगा। तो ट्राई करो राउंड ऑफ, 45 भी चलेगा बट 43 43.5 42.4 ऐसे ये सब नंबर्स नहीं डालने, ठीक है। राउंड ऑफ करो नंबर्स को, ठीक है। अगर मान लो 220 मिलियन आ रहा है तो उसको 220 रखो, मतलब 2217 आ रहा है तो उसको 220 ही मान लो, वैसा राउंड ऑफ टू द क्लोजेस्ट नंबर, ठीक है। तो उससे तुम्हारी कैलकुलेशन इजी रहेंगी, बिकॉज एस्टिमेट्स में दे आर गोइंग टू चेक योर बेसिकली लॉजिकल थिंकिंग स्किल्स एंड योर हाउ स्ट्रेटेजिकली यू कैन थिंक एंड व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट यू हैव। तो उसमें एग्जैक्ट नंबर्स के पास ना जाके बॉल पार्क नंबर्स की बात करनी है, ठीक है। The next thing is that using percentages to calculate basically like how much share is it, like 30% rural है, 60% ऐसा है, 70% ऐसा है, तो वो उसको कभी भी कुछ शेयर्स में डिवाइड करना तो उसको परसेंटेजेस में करना एंड उससे जल्दी होगी तुम्हारी कैलकुलेशंस। नेक्स्ट थिंग, अगर तुम्हें बोले कि आज से 5 साल बाद कितना होगा, ठीक है, तो हर साल की ग्रोथ तुम्हें नहीं पता, हो सकता है 10% कोई चीज हर साल ग्रो कर रही हो, 20% कर रही हो, बट उसके लिए CAGR ले लो। सो हम CAGR यूज करेंगे, उससे हमारी कैलकुलेशन और आसान हो जाती है, क्योंकि हमें फिर एक एनुअलाइज रेट मिल जाता है, मुझे हर एक साल का अलग अलग रेट लेने की जरूरत नहीं है, उससे मेरी ग्रोथ इजीली मैं कुछ बता सकता हूँ कि ठीक है 5 years डाउन द लाइन दिस इज व्हाट्स गोइंग टू हैपन, ठीक है। एंड बैक ऑफ द एनवेलप का मतलब ये होता है कि मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हें कोई एनवेलप ढूंढना है वहाँ पे, बैक ऑफ द एनवेलप का मतलब है कि तुम्हारे सामने कुछ भी पेपर या फिर कुछ भी पड़ा है,
उसके ऊपर तुम इजी कैलकुलेशंस करके एंड यू कैन कैलकुलेट थिंग्स। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना, बहुत इजी छोटी छोटी कैलकुलेशंस के साथ तुम अपना यू कैन गेट टू द रिजल्ट। ठीक है, तो ऐसा कुछ करना है बहुत ही सिंपल तरीके से, मतलब कुछ भी ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना, कुछ ज्यादा नहीं सोचना, एक चीज को बहुत ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेट नहीं करना। ट्राई टू सॉल्व इट विद द इजीएस्ट अप्रोच, बट हर चीज का लॉजिक होना चाहिए। ठीक है, नाउ गेस्टिमेट क्वेश्चंस किस किस टाइप के हो सकते हैं। सो बेसिकली दे कैन बी अबाउट मार्केट साइजिंग, कि अगर तुमसे बोला जाए कि इंडिया में ओवरऑल जैसे कॉफी ड्रिंकर्स कितने हैं, ठीक है, या फिर इंडिया में स्मार्टफोन्स की कितनी बड़ी मार्केट है, ठीक है, या फिर इंडिया में हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर मेडिकल एग्जामिनेशंस, तो एक पर्टिकुलर चीज की मार्केट साइज कितना बड़ा है। ठीक है, तो दिस कैन बी अ टाइप ऑफ गेस्टिमेट क्वेश्चन दैट यू कैन अस्यूम इन योर इंटरव्यू। या फिर यू कैन अस्यूम अ क्वेश्चन लाइक प्रोडक्ट डिसीजन, बेसिकली whenever you are building something new, like एक नई कार आ रही है, एक नया वेरिएंट आ रहा है, सो फॉर एग्जांपल एसयूवी, सो यू सेइंग कि भाई ये अब नई एसयूवी हम निकाल रहे हैं, तो इसका कितना मार्केट शेयर हमारी कंपनी कैप्चर कर सकती है। ठीक है, ये मोस्टली लाइक कार कंपनीज में होता है, टेक कंपनीज में, मोबाइल फोन कंपनीज में, लाइक एप्पल अपना नया नया फोन लॉन्च कर रहा है एंड सपोज यू आर गेटिंग एन इंटरव्यू इन एप्पल, तो दे कैन आस्क यू कि हम अपना नया आईफोन लॉन्च करेंगे, उसकी हम कितनी सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो you have to make a lot of assumptions for that. And this is what generally happens every year. These companies, you know, make a lot of these assumptions. बहुत सारी रिसर्च भी करते हैं, बट हर चीज पॉसिबल नहीं है, सो दे मेक अ लॉट ऑफ assumptions as well. So you need to have a critical mindset to solve these kind of guesstimates. ठीक है, third kind of guesstimate is basically operational estimates, like how many deliveries a company is making, ठीक है, कितना रॉ मटेरियल यूज हो रहा है किस चीज में, कितना पेट्रोल लग रहा होगा, तुम्हारा लाइक अगर एक बात करें कि इंडिया में कितने ट्रक चलते हैं और कितना पेट्रोल यूज होता है उसमें, ठीक है, कितना डीजल डीजल लगता है ट्रक्स में, तो कितना डीजल कंजम्पशन होता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमारे ऑपरेशनल होते हैं कि कितना इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता होगा अगर तुम्हारे पास एक इतनी फैक्ट्रीज रन करनी है इस पर्टिकुलर चीज के लिए। तो ये सब चीजें तुम्हें एस्टिमेट्स में आएंगी, ऑपरेशनल एस्टिमेट्स में। द लास्ट काइंड ऑफ एस्टिमेट इज बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी या रेवेन्यू, कि तुम्हें कुछ प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेशन करने के लिए दे दिया, कि रेवेन्यू एस्टिमेट बनाने के लिए बोल दिया तो कि ठीक है हम ऐसा कुछ कर रहे हैं एंड हाउ मच रेवेन्यू डू यू थिंक वी कैन जनरेट। अगर तुमने बोला सपोज करो कि हम लाइक वी आर गोइंग टू सेल कैमरास, ठीक है, तो उस पे हम कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं इन द कमिंग ईयर। ठीक है, तो जैसे अब अ लॉट ऑफ कंपनीज इन द कैमरा मार्केट आर एक्सपेक्टिंग यू नो फॉल इन देयर सेल्स। डू यू नो व्हाई? बिकॉज अब पहले जो लोग डीएसएलआर यू नो परचेज करते थे, मोस्ट ऑफ देम हैव स्टॉप डूइंग दैट, पीपल आर प्रेफरिंग यू नो द मोबाइल फोन्स टू रिकॉर्ड वीडियोस एंड ऑल। सो कैमरास की सेल्स अब धीरे धीरे ड्रॉप होती जा रही है, जिसके पास हैं पहले से ठीक है, और भी लोग लेते हैं बट कम लेते हैं, मोस्टली प्रोफेशनल्स जो होते हैं दे प्रेफर परचेजिंग कैमरास, बट जनरल हाउस होल्ड भी पहले ले रहता था, नाउ दे आर जस्ट यूजिंग द मोबाइल फोन्स। सो कैमरास की सेल ऐसे तुम कैलकुलेट करेंगे तो ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, so this is basically the type of, you can say, the guesstimate questions that you can assume in your interviews. Estimating, अब ओके ये एक केस स्टडी है, ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, इसके बाद एक और केस स्टडी आएगी वो तुम लोग सॉल्व करोगे। ठीक है, नाउ लेट्स एस्टिमेट द स्मार्टफोन मार्केट इन इंडिया फॉर नेक्स्ट ईयर। ठीक है, इंडिया में एक तो पहले देखो दो तरीके के फोन्स होते हैं, तुम्हें पता होना चाहिए, एक तो फीचर फोन्स होते हैं और एक स्मार्टफोन्स होते हैं। तो नाउ लेट्स अज्यूम कि इंडिया में अगर मैं बोलूँ कि सिर्फ इंडिया की बात हो रही है, ठीक है, तो इंडिया में नेक्स्ट ईयर स्मार्टफोन्स की कितनी सेल होने वाली है। तो इसको कैसे करोगे, तुम्हारे इसको पहले इशू ट्री अगेन और लॉजिक ट्री में इसको बिल्ड करते हैं, लॉजिक स्टेटमेंट्स में डालते हैं। पहले तो पॉपुलेशन डेटा तुम्हें पता होना चाहिए कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, कितनी पॉपुलेशन है इंडिया की, 140 करोड़, तो मतलब है वैसे तो 1.4 बिलियन यू कैन से। ठीक है, तो एक तो ये नंबर हमारे पास होना चाहिए कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, क्योंकि इसी के अंदर अब हम आगे अपनी assumptions बिल्ड करेंगे कि मतलब अब इसको ब्रेक डाउन करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि स्मार्टफोन्स कौन लोग यूज करते हैं, मोस्टली अडल्ट यूज करते हैं। ठीक है, बच्चों को मैं इग्नोर कर सकता हूँ, ऑल्दो इवन सम स्टूडेंट्स इन देयर लाइक 10th स्टैंडर्ड, 11th 12th स्टैंडर्ड, उनके पास भी स्मार्टफोन्स होते हैं, बट लेट्स इग्नोर देम फॉर नाउ फॉर आर यू नो ईज ऑफ कैलकुलेशन। तो ऐसी ऐसी चीजों को इग्नोर भी करना पड़ेगा, ये सब assumptions आएंगी तुम्हारी। ठीक है, ना मार्केट सेगमेंटेशन पे आते हैं। सेगमेंट करो पूरी मार्केट को बाय एज, बाय इनकम ग्रुप, बाय अर्बन रूरल, कैसे भी करना है तो उसको सेगमेंटेशन तुम्हें करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अपनी assumptions बनानी पड़ेंगी। जैसे मैं इसको बोलता हूँ कि चलो ठीक है मैं अर्बन और रूरल पे करता हूँ इसको, और बाय एज में आई वुड से दैट ऑल अडल्ट्स, ठीक है, 18 से ऊपर जितने भी लोग हैं उनको मैं यहाँ पे सेगमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट पेनिट्रेशन रेट्स। पेनिट्रेशन रेट्स का मतलब है कि अगर मैं स्मार्टफोन की बात कर रहा हूँ, तो कितने लोग हैं जो स्मार्टफोन्स को मतलब यूज करते होंगे, अफोर्ड कर सकते हैं, या मतलब दे
कैन अंडरस्टैंड हाउ टू यूज अ स्मार्टफोन, ठीक है, मतलब उनको समझ भी आएगा कि यार यूज कैसे करते हैं, तो उतना भी होना चाहिए। नाउ इकोनॉमिक ट्रेंड्स बेसिकली कि इंडिया में लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कितनी है, उनका एडॉप्शन क्या है, वो यूज करना चाहते हैं फोन से यूज करना है, वो सब चीजें, और मार्केट डायनामिक्स अभी क्या चल रहे हैं, गवर्नमेंट्स का क्या पॉलिसीज हैं, उन सब चीजों को लेके कुछ कुछ अजम्पशन तुम्हारी जो भी रहेंगी, तो पूरा तुम्हारे माइंड में जैसे ही क्वेश्चन आएगा कि एस्टिमेट करो अगले साल की स्मार्टफोन की कितनी सेल हो सकती है, तुम्हारा पूरा जो उसको लेके कुछ अजम्पशंस हमारे माइंड में, ऐसी अजम्पशंस बिल्ड होनी स्टार्ट हो जानी चाहिए। अप्रोच क्या रहेगी मेरी अप्रोच, बेसिकली जैसे मैंने भी बताया कि इंडिया में 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, 140 सीआर, ठीक है। अब उसको मैं नेक्स्ट उसको ब्रेक डाउन करता हूँ कि ठीक है इंडिया में पेनिट्रेशन कितना है, लेट्स अज्यूम कि अर्बन एरियाज में यानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ठीक है, ऐसे सिटीज के अंदर लेट्स से 65% ऑफ पीपल आर यूजिंग स्मार्टफोन्स, ठीक है। ये मेरी असम्पशन है कि यहाँ पे 35% लोग वो होंगे जो स्मार्टफोन्स यूज नहीं करते होंगे, बट 65% लोग वो होंगे जो स्मार्टफोन्स यूज करते होंगे। डिजिटल अडॉप्शन बोल लो इसको, या फिर यू कैन से अफोर्डेबल कितने हैं, इसमें तो वो भी डाल दिया, मतलब कि ठीक है इतने लोग होंगे जो इस पर्टिकुलर एज या एज ग्रुप में आते होंगे, तो उसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। आई कुड हैव कॉम्प्लिकेटेड इट कि ठीक है इंडिया में लाइक इसको मैं डाल दूं कि 18 से पहले के बच्चे इतने होंगे, एज ग्रुप होगा उतना, एज ग्रुप होगा, वो भी ओवर कॉम्प्लिकेट भी मैं इसमें कर सकता था, बट थोड़ा सिंप्लीफाई करके अभी मैंने थोड़ा ईजी रखा है ऐसे। ना रूरल पॉपुलेशन आई एम सेइंग कि ठीक है रूरल में अगर 10 लोग हैं तो 10 में से 3 लोग यूज करते होंगे स्मार्टफोन, 7 वुड बी यूजिंग इधर नो फोन और मे बी अ फीचर फोन, ठीक है, क्योंकि रूरल में थोड़ा कम अडॉप्शन होता है, तो वहां पे भी मैंने एक अजम्पशन लगाई 30%। दिस कैन बी 40%, दिस कैन बी 20%, बट अजम्पशन से ही है, तो एग्जैक्ट नंबर नहीं जाना, बट बहुत ज्यादा ऑफ द चार्ट भी नहीं जाना, मतलब अगर तुम यहाँ पे डाल दो कि रूरल में जो पेनिट्रेशन है दैट इज इफ यू सेइंग लाइक 70% और 80%, दैट वोंट मेक एनी सेंस। अर्बन में भी तुम अगर 80% बोल दोगे दैट वोंट मेक एनी सेंस, क्योंकि अर्बन के अंदर भी ना बहुत सारे लोग होते हैं जो फीचर फोन्स यूज करते हैं, हमने खुद देखा है, मतलब आसपास हमारे मार्केट में कितने लोग हैं जो अभी भी मतलब फीचर फोन यूज करते हैं, खासकर ओल्ड एज के जो लाइक लोग हैं, या फिर जो नहीं, जिनका टेक में इतना जो नहीं कंफर्टेबल है, या फिर जो अफोर्ड नहीं कर सकते, स्टिल यूजिंग फीचर फोन्स, तो ये भी लॉजिकल होना चाहिए। नाउ लेट्स अज्यूम, ये से मैंने assumption आ गई 70% ऑफ द पॉपुलेशन इज अडल्ट। नाउ अगेन दिस इज एन assumption, हो सकता है कि ये नंबर 75 होता, 65 होता, बट फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन एक लॉजिकल assumption हमने लगाया कि ठीक है 70% ऑफ द पॉपुलेशन इज अडल्ट, ठीक है। नाउ जो हमें बोला है कि मार्केट कितनी बड़ी होगी अगले साल, मार्केट का मतलब क्या, कितने फोन्स बिकेंगे, कितने फोन्स बिकेंगे। दो केसेस में फोन्स बिकते हैं, या तो कोई नया फोन खरीदता है जो फर्स्ट टाइम कोई खरीद रहा है अपना नया फोन, मतलब कोई नया फोन ले रहा है, या फिर वो जो अपना ओल्ड फोन को मतलब दे आर गोइंग टू रिप्लेस विद अ न्यू फोन, ठीक है। तो अ लॉट ऑफ पीपल व्हेन दे गो टू कॉलेज दे परचेज अ न्यू फोन, ठीक है। व्हेन दे गेट अ न्यू जॉब दे जनरली परचेज अ न्यू फोन, या फिर यू कैन से whenever like they have been using a phone for the last 3-4 years, then they purchase a new phone. So let's assume कि 10% जो है वो नए यूजर्स होंगे, और 15% जो है वो रिप्लेसमेंट होंगी उनकी फोन्स की, ठीक है। तो ये assumptions हैं। अब ये मैंने पूरी assumptions अपनी बिल्ड करी हैं बेसिस कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, ऐसे से मैंने ये अपनी assumptions रखी। यू कैन हैव सम सिमिलर assumptions, कुछ हल्का फुल्का चेंज भी कर सकते हो, बट दैट वुड बी अपॉन योर यूज केस, ठीक है। अब कैलकुलेशंस करते हैं। इंडिया में आई एम सेइंग दैट पोटेंशियल जो पूरी मार्केट है दैट इज 1.4 बिलियन, ठीक है। उसका 70% क्या था, अडल्ट था, तो मेरे पास कितने यूजर्स आ गए, 980 मिलियन तो अडल्ट आ गए। अब इसमें से मेरे यूजर्स निकलने वाले हैं 980 मिलियन में से, ठीक है। आउट ऑफ 980 मिलियन दैट मीन्स 98 करोड़, अर्बन और रूरल में मैंने डिवाइड करा कि आई एम सेइंग 35% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन अर्बन एरियाज एंड 65% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरियाज। ये समझ आ रहा है? ये भी एक और assumption है यहाँ पे जो मैंने पीछे लिखी नहीं थी, बट आई एम अज्यूमिंग कि इंडिया में अर्बन एरियाज के अंदर 35% पॉपुलेशन रहती है, जैसे दिल्ली के अंदर पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ लोग रहते हैं, मुंबई में अराउंड 1.8 करोड़ लोग रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे मेजर मेजर सिटीज के अंदर लोग ज्यादा रहते हैं। किसी एक विलेज की बात करेंगे तो वहां पे बहुत कम लोग रहते हैं। नाउ 35% ऑफ 980 मिलियन इंटू 65% कौन सा था मेरा, ये कि पेनिट्रेशन कितना, 65%, ठीक है। 980 मिलियन का 35% का 65%, दैट मीन 35%, 35 डिवाइड बाय 100 इंटू 980 मिलियन इंटू 65 डिवाइड बाय 100, वो नंबर मेरे पास कितना आ गया, 223 मिलियन। दैट मीन दैट मीन्स दिल्ली के जैसे एरियाज में, लाइक अर्बन एरियाज में, कि 223 मिलियन पीपल वुड बी यूजिंग अ स्मार्टफोन। Similarly, I calculated for rural areas as well. Okay, that is like 65% of 980 million of 30 like into 30%, वो आया मेरा 189 मिलियन। तो टोटल मेरे स्मार्टफोन यूजर्स कितने आ गए, अर्बन प्लस रूरल,
दैट इज 412 मिलियन। कितना हो गया ये? 41 करोड़, मोटा मोटा 40 करोड़, 40 करोड़ यूजर्स हैं इंडिया में जो स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं अभी। नाउ व्हेन आई हैव कैलकुलेटेड दिस, ठीक है, अब मैं आगे चलो, ठीक है, 412 मिलियन पे, अज्यूमिंग लाइक 40 करोड़ अप्रोक्सीमेटली इतने यूजर्स इंडिया में है। अब इसमें मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हर साल 10% लोग होंगे जो नया फोन लेंगे या फर्स्ट टाइम फोन लेंगे, जो नए यूजर्स होंगे बेसिकली, दैट इज अगेन लाइक 41 मिलियन। और वो लोग जो ऑलरेडी यूज करें, जो अपना फोन रिप्लेस करेंगे, कोई दूसरा फोन लेंगे, दैट इज अबाउट लाइक 1.8 मिलियन रिप्लेसमेंट्स, ठीक है। तो बॉल पार्क नंबर मेरा कितना आ गया? 100 मिलियन न्यू फोन्स। मतलब अगले साल मेरे 10 करोड़ फोन बिकने वाले हैं इंडिया में।